دماغ جو ہے نا، یا اینڈنگ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، یا اینڈنگ میں ہم ایک لفظ لیتے ہیں، مثلاً جیم را یا. تجری من تحتها الانہار، یہ سنا ہوگا آپ نے، تجری. جی بہتا ہے. اچھا، اب اس کا جو مضارع ماض بنائیں گے ہم، تو وہ کچھ ایسے بنتا ہے، جرا. یہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو ہم جرا پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مقصورہ ہو جاتی ہے یہاں پر، رائٹ. جرا ہی نہیں رہ جاتا، یہ جرا. ٹھیک ہے. جرا، جراؤ، جرائیتا، جرائیتا، جرائتم. ٹھیک. جرائتو. جرائنا. جرائنا. ٹھیک. جی یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. اچھا، جب اس کی مضارع آپ بنائیں گے تو اس میں یا لگا دیں گے، یا مقصورہ جو ہے وہ واپس یا میں تبدیل ہو جائے گی. یج یج ری. اوکے. یجری، یجری، یجرونا، 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 تجری. گیا نا وہ آپ کا مشہور لفظ تجری. تجری. تجرونا، اجری، نجری. اوکے. یہ جو دو نقطے لگتے ہیں اس کی وجہ سے ہم یا پڑھتے ہیں، اور جب نہیں ہوتے اس کو مقصورہ کہتے ہیں. یا اس کو کے مقصورہ، ہاں، جی یوزلی مقصورہ، یعنی کہ الف ہو جاتا ہے وہ. صحیح. بیہیو لائک الف، ویک لیٹر ہے نا پھر. جی جی. اچھا، اس کا جو امر بنے گا وہ ہو جائے گا اجر، اجر اینڈ اجرو. اجرو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کے جیم را یا. تو یہ ایک قسم ہے، اور اس کے لیے اب میں آپ کو ایک لفظ ہوم ورک کے لیے دے دیتی ہوں، اور وہ ہوگا جیم زا یا. بالکل اسی پیٹرن پہ آپ کو بنانا ہے ہوم ورک میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزا، جزا تو آپ کو پتا ہے، رائٹ. جی جزا ہے، جزا. ٹھیک. تو ہم نے جی ہاں، یہ ایک یا کا طریقہ ہو گیا. اور ایک اور ہے، پروین ہے نا، پروین ابھی تک صحیح ہے، یہ کر چکے ہیں آپ؟ جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. Sister Safia, Yes. on the Amar, isn't that going to be on the Re is there? Because you did the two. Yeah, there is a Zair on the Ra. So that's why there is a Kasra on the Ra. Okay, so that you don't have the Zair there. I don't have to? You have to put the Zair under the Re. No? Ijri? Ijru. Yeah, this is Ijri. Yeah, sorry. Yeah, it would be Ijri. Sorry. Thank you. Yeah, Ijri. Yeah, اب کریکٹ ہو گیا. Like Sadia. جی جی. Thank you. Thank you, Tahira. So
آپ جزا کا جب بنائیں گے تو وہ اجزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی. So thank you for the correction, Tahira. And now the second form ہم کرتے ہیں. Clear all the drawing. The second love is لام قاف یا. اوکے. جی. یہ دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے. دس از لاقیا. ٹھیک. اس میں یا کو ہم نے رکھا. ٹھیک ہے. لاقیا لاقیا لقو ملاقات کرنا. رائٹ. جی. لقو. لقیتا لقیتا. اوکے. لقیتم لقیتو. تو اس کا لقیتو ہوگا. اس میں زیر لقیتو. لقیتو لقیتو. ہاں اس میں زیر آ رہا ہے. لقیتو. اوکے. اس سے ڈفرینٹ ہے. رائٹ. یہ اس کا سیکنڈ طریقہ ہے. یعنی کہ جو کچھ لفظ ہیں جو اس والے فارم میں آتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ باب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اس میں سمیع باب ہے، نون باب ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. بس آپ یہ لے لیں کہ یہ دو طریقوں سے تین جس باب میں آتا ہوگا اس لحاظ سے چلتا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ہاں. لقیتو لقینا. لقینا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا کیا ہو جائے گا؟ مضارع. مضارع. لام قافیہ. میرا فون کا ہے. اس کو میں تھوڑا سا چیک کروں گی کیونکہ میں اس کی زیر زبر آپ کے لیے غلط نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. تو ویسے یا لگ کے یلقی بنے گا. آئی ایم تھنکنگ میرا خیال ہے کہ وہ یلقا ہونا چاہیے، پر لیٹس میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کنجوگیشن لام قاف یا. ٹھیک. تو باجی یہ جو یا ہے، مطلب یہ جو مضارع کے یا اور تا ہیں، اس کے اوپر ہم ہمیشہ زبر ہی لگاتے آئے ہیں، ہے نا؟ جی. تو یہ زبر ہی ہوتا ہے اس کا؟ نہیں وہ پیسو ہوگا تو پھر وہ ابھی ہم اس کو بعد میں سمجھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہوگا. اوکے بعد میں. ٹھیک ہاں ہے. لیکن جو آپ ابھی سیکھ رہی ہیں اس میں زبر ہی ہوتا ہے. ٹھیک. یل قا. رائٹ. یہ یا ہٹ جائے گا، یہاں پہ قا ہو جائے گا. اوکے. یلقا اینڈ یلقونا. تلقا تلقونا. یہ آپ نے دوسرا طریقہ سیکھ لیا. ٹھیک ہے. القا. القا نلقا. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا اس کا امر کیا ہو جائے گا؟ اس میں تو زبر ہے. تلقی. تلقا میں اسی سے دیکھیں گے ہم قاف کے زبر سے.
इल्का हो जाएगा ये, जबर की वजह से जेर आ गया। ठीक, इल्का। इल्का, दूसरा उसमें इजरी था, इसमें इल्का है, इल्का एंड इल्कू। इल्का, इल्का, इल्काओ, जबर है इसमें भी। तलकूना बोला था। तलकूना, yeah, but this is with the zabar. ओके, इल्काओ, ठीक है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना जो पहले वाला था। ठीक, तो इसको आप ये जो है इस, एक मिनट, लकिया के बाद लकू था या लकऊ था वो? ये लकू है, वो वापेश ही है और वो। चेक कर लें। ये जो माजी का था। लका मास का, जी एक मिनट में चेक करती हूँ। माजी का लकिया एंड इसका प्लूरल होगा लकू, पेश दमा के साथ है, ठीक है। अच्छा, इसका अब आप करेंगी बे काफ या, इसी के पैटर्न पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ठीक ठीक, जी। तो आपने 2 किस्म कर ली, बाकी भी इसमें काफी किस्में, क्योंकि डिपेंड करता है वो जो आप बाब आपने किया था ना, नून का बाब किस बाब में जाके ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर और कोई आएगी और जो इससे मुख्तलिफ होगी तो फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक। अभी आपको हम टूल्स भी समझाएंगे कि कहाँ से आपको चेक कभी कभी कर लेना होता है, ठीक है। बिल्कुल जी, ठीक, तो ये आपका हो गया सबक। और ये कल हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि या को मिडिल में या का अगर एक आध मिल जाता है लफ्ज तो वो भी कर लेंगे, फिर आपको फॉर्म्स बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक। इंशाल्लाह जी। चले, अब आ जाए हमारे नए साथी। नए साथियों में कौन कौन है? राबिया है, सादिया है और मैमुना है, ठीक है। आप लोग रेडी हैं? पहले कल का बताइए, मैमुना स्पेशली, क्योंकि वो तो बिल्कुल नई थी कल। मैमुना, आपका कंफर्ट लेवल कैसा है? समझ आया था? मैमुना, माइक ऑफ, लाइक आपका म्यूट पर है, उसको अनम्यूट करके बोलना होता है। मैमुना, मैमुना, वालेकुम सलाम जी। जब मैं कहा करूं सवाल बोल, आपका नाम लिया करूं तो आपको आना चाहिए अनम्यूट करना, ठीक है। तो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि आपको कल का समझ आ गया था? बस बाजी पढ़ा तो था मगर इतना समझ नहीं आया। ठीक है, तो आप किससे कंफर्ट फील करती हैं? उनसे आप बार बार फोन करके पूछा करें, राबिया से कि सादिया से? इन दोनों में से कौन आपको ज्यादा पसंद है? उसको कॉल कर लिया करें। राबिया और सादिया, आप में से कौन पसंद करेगा मैमुना को समझाना? मैं समझा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगी, बार बार पूछेंगी, वो आपको समझ आता जाएगा, ठीक। तो कल हम ने रब्बो के समझ आपको तो ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आप हिफ्ज कर रहे हो, आपके लिए वो सारे लफ्ज जो हैं बहुत ही आसान हैं, ठीक है, बनिस्बत उनके जिनको कुरान हिफ्ज नहीं है, राइट। आप तो हाफिज हो इंशाल्लाह, विद इन अ मंथ और 2 आपका आपको पूरा कुरान हिफ्ज हो जाएगा इंशाल्लाह।
ٹھیک. تو اب جو ہے ہم آ رہے ہیں پریپوزیشن پہ. سعدیہ اور رابعہ مجھے ہیلپ کریں گی کہ پریپوزیشن کو کیا کہتے ہیں. حرف. ٹھیک ہے, حرف کہتے ہیں, رائٹ. اور ٹو بی پریسائز حرف جر کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے, خیر حرف پہ اکتفا کریں. اب ہم کریں گے حرف. تو کل ہم نے کیا تھا پوزیسو پروناؤن ہو, ہم, کا, تم, یہ, نا, اینڈ ہا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور اس کے بعد ہم نے رب ہو کیا ہو گیا تھا اس کے معنی, اس کا رب. ٹھیک ہے, اور رب ہم, ان کا رب, ہمارا رب. ان کا رب. کس نے بولا ہمارا؟ ہم مانے ان کا. میں نے. ہاں, ہم مانے ان کا ہوتا ہے, ہمارا جو ہوتا ہے وہ نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا, اردو سے تھوڑا سا مختلف ہے. جی. تو جب آپ اس کا یاد کر لیں گی کہ یہ اس کا ہے, یہ ان کا ہے, ہو اینڈ ہم, کا اینڈ تم, تیرا اور تمہارا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ مانے میرا, ہمارا, اور یہ اس کا مؤنث میں. ٹھیک ہے, تو ربہم, ربو کا, ربکم, ٹھیک ہے, اینڈ ربی, میرا. ٹھیک ہے. یہاں پہ میرے پاس ایک بنگالی بچہ آیا تھا, تو کہنے لگا کہ میرے کزن کا نام فضل ربی ہے, ہم اس کو ربی ربی کہتے ہیں. میں نے کہا نعوذ باللہ, آئندہ ایسے بولنا بھی نہیں. رائٹ, ربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا رب. آپ رب کسی انسان کو نہیں بول سکتے کہ میرا رب. ہاں, تو یہ ہوتا ہے قرآن نہ سیکھنے کا کہ آپ کسی اپنے کزن کو ربی ربی بول رہے ہوتے ہیں. ربنا ربوہا, اس عورت کا رب. رائٹ, اچھا یہ ہو گیا. اب ہم یہاں پہ, یہ تو میں نے آپ کو وہ بتا دیے, دوبارہ ریپیٹ کروا دیے. اب ہم کریں گے, ایک حرف لیتے ہیں ہم, من. ٹھیک ہے, من کا مطلب کیا ہوتا ہے میمونہ؟ من جو ہے قرآن میں سب سے زیادہ جو لفظ آیا ہے وہ ہے من. ٹھیک ہے, تو اگر ابھی کبھی آپ کہتے ہیں مر ربی, ترجمہ کون کرے گا؟ میمونہ کریں گی. مر ربی, اس کو توڑیں آپ. من کا مطلب سے, اور ربی ہی کا مطلب میمونہ جلدی جلدی بولنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. من سے رب, میرا رب. میرا کہاں سے ہو گیا؟ میرا تو یہ تھا نا, مر ربی تھوڑی لکھا ہے میں نے. اگر میں مر ربی لکھتی تو میرا رب ہوتا, میرے رب سے. یہاں پہ میں نے مر ربی ہی لکھا ہے. ہی کا مطلب ہی, ہا. جی, اس کا زبر بھی ہو سکتی ہے, زیر بھی ہو سکتا ہے, پیش بھی ہو سکتا ہے. مر ربہ لکھ دیتی ہوں, چلیں آپ کے لیے, مر ربہ. ٹھیک ہے, لیکن لکھ نہیں سکتی کیونکہ من ہے. رائٹ, وہ زیر کرنا پڑتا ہے, نہیں غلط ہو جائے گا پھر, وہ ٹیچر پھر بہت غلط ٹیچر ہو جائے گی. تو مر ربہ, اس کے رب سے.
हाँ, किसके? उसके रब से, उसके रब से। ठीक है। क्या हो जाएगा? ही माने ही कह लें या हु कह लें या हा कह लें, इन सब का मतलब क्या होता है? उसका, ठीक है। तो जब आप पढ़ती हैं मेरे रब भी, इसका मतलब उसके रब से, ठीक है। या और ये से हमने मोस्ट कॉमन लिया है, का भी हो सकता है, राइट। जब जैसे हम कहते हैं मिन फज़्ल रब्बी, राइट, मेरे रब का फजल, राइट। मिन फज़ली रब्बी कहते हैं ना, ठीक, समझ आ रहा है। तो ये मिन और अन और ये सीखने से इंसान के लिए कितना क्लियर हो जाता है। वो जो दो दुआएं मुंह में ऐसे बोलते रहते हैं जो कि जायज नहीं है, ठीक है, समझ के बोलना चाहिए। और आप लोग इस लेवल पे पहुंच जाओगे अगर थोड़ा सा गौर करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लाइक प्रीपोजिशन का क्या काम है। प्रीपोजिशन छोटे छोटे लफ्ज हैं लेकिन उनके मायने होते हैं, अगर वो आ जाए तो आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, ये मैंने उसकी एग्जाम्पल भी बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये मिन लेके इसकी पूरी गर्दान बना देंगे और आपको मायने समझते जाने होंगे, ठीक है। तो अगर हम आज मिन सीख रहे हैं तो अगर मैं रब हटा के मिन लगा दूं, मिन हु, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब? उससे, ठीक है। मिन हूं, उनसे, मिन का, तुमसे, तुझसे, ठीक है, समझ आए? जी यमुना आप भी बोलती रहें। मिन का तुझसे, मिन हूँ उनसे, मिन हूँ उससे, मिन कुम, तुम सबसे, ठीक है। तुम सबसे, मिन्नी, मुझसे, मुझसे, मिन्हा, उससे मोहनस, उससे मोहन्नस से, ठीक है। समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं है ना? अब कहीं भी मिन का आ जाए, मिनकुम आ जाए, वो अलग मतलब थोड़ी है। आपको सिर्फ याद क्या करना है? मिन याद करना है। हु, हुम, का, कुम, इसको पहले से याद किया हुआ है आपने, ठीक है। तो अब मिन का आ जाएगा तो आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो, मिन्नी आ जाएगा उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो, मिन्हा आ जाएगा उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक। आसान है। बाजी याद हो जाएगा तो फिर तो इंशाल्लाह आसान है, अभी मुश्किल लग रहेगा। थोड़ा सा याद करना पड़ता है। कुरान में जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप सोचा करोगे अब ये मिन का आ गया, अब ये मिनकुम आ गया, अब ये मिनहू आ गया, राइट। तो वो खुद ही याद होता जाएगा, जी ठीक, इंशाल्लाह जी, राइट। लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि पूरा आपको, जैसे जो कुरान जो है ना वो गार्डन है, अब आपको पता ही नहीं है कि ये गुलाब का फूल है, ये चंबेली का फूल है, तो आप ऐसे ही चले जा रहे हो। जब आपको मायने समझ आ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उनमें कौन कौन से उसमें करिश्मे हैं, कौन कौन से फूल हैं, पूरा गार्डन है वो, बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं जरा मिटाती हूँ। अब मिन आ गया आपको, तो एक और भी सीख लें आप, हाथ के हाथ। अन, क्या सीखना है? ये मिन सीखा था, ठीक है। यहाँ पे अन सीख लें। अन का मतलब भी से ही होता है या पर हो, लाइक से होता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, रजी अल्लाह यानी कि अल्लाह ताला उनसे, रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, अन्हु। अगर मैं अन्हु कहूंगी तो उससे, एक से, अन्हु, ठीक है। अन्हुम, अगर मैं दो से ज्यादा लोगों को कहूंगी, ठीक है, अन्हुम,
right? اگر میں کہوں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، تو پھر میں کیا کہوں گی؟ رضی اللہ عنہم کہوں گی. ٹھیک ہے؟ ان کا تجھ سے، ٹھیک ہے؟ ان کم تم سب سے، انی انا ہم سے، انہا ہاں. اگر حضرت عائشہ کہیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ انہا رضی اللہ عنہا. اگر ہم نے ان کے سامنے انہو لگا دیا تو ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ مؤنث نہیں، مذکر بنا دیا. ٹھیک ہے؟ تو فرق پتہ چلا انہا کا اور انہو کا. جی جی حضرت عائشہ کے لیے کیا کہیں گے ہم ہمیشہ؟ انہا. ٹھیک ہے؟ اور اگر صحابی آدمی ہیں تو ان کے لیے انہو. ٹھیک، جی سمجھ آ گیا؟ تو آج آپ لوگ یہی دو رکھیں انشاءاللہ. ہم اس کی اسپیڈ جیسے جیسے میمونہ کو آپ دوبارہ سے یہ جو 3 سبق ہیں، 2 سبق ہیں، رابعہ اینڈ سعدیہ، آپ ان کو فون کر کے بار بار روزانہ ان سے سنیے گا جب تک ان کو پکا یاد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میڈم. انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا میمونہ آپ کو. آپ کا جو حفظ ہو جائے گا اس میں بھی مزہ آ جائے گا جی جی انشاءاللہ. اوکے چلیں، اب ہماری نئی کلاس آنے والی ہے ٹھیک تو آپ ہے. لوگ اسٹے جو کرنا چاہے وہ اسٹے کرے. جس کا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وہ نماز پڑھ لے انشاءاللہ. چلیں اوکے. میڈم دلشاد ہیں، طاہرہ ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پروین اسٹے کریں گی، سنیں گی، ہے نا؟ جی السلام علیکم. میں ہوں. جی جی جی. سو میڈم دلشاد کل آپ نہیں بول رہی تھی، کل آپ بزی تھی شاید. نہیں میں کل بہت آخر میں آئی تھی، آ گئی تھی، لیکن ڈسٹربنس کی وجہ سے گھر میں تو میں نہیں اچھا اچھا، پارٹیسپیٹ کر رہی تھی زیادہ. صحیح صحیح، بچے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی پورا ویک ایسے ہی چلے گا او ہو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ وہ میری بہو جو ہے سمینہ یو ایس گئی ہوئی ہیں، سمینہ بچے میرے شکایت پاس. کر رہی تھیں کہ کوئی بھی نہیں تھا. تو دیکھیں آج وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی. وہ اچھا ایسے میں نے اکیلا فیل وہ کر رہی تھی. اس کی ریکارڈنگ میں نے سن لی تھی. اچھا ہاں اچھا اچھا. کوئی سوال آپ کو؟ نہیں مجھے تو وہ اچھا لگا تھا. لاسٹ میں تھوڑا سا بولی بھی تھی شاید. تبارک کی اچھی بتائی ہوئی تھی. او ماشاء اللہ. تبارک الذی. ہاں آج بتائے سورہ ہود ہوگی اور سورہ یوسف. سورہ یوسف جی عزیر کریں گے. سورہ ہود کون کر رہا ہے؟ دونوں وہ بچے آئے ابھی 11 بجے لاگ ان ہوں گے. فاطمہ کو کہا ہوا ہے. فاطمہ کو کہا ہے سورہ ہود کا. ہاں چلیں ہاں انشاءاللہ. یہ آلریڈی بھی میرے خیال میں سورہ ہود ہی کر رہی تھی. فاطمہ نے شروع نہیں کیا ابھی شاید. اچھا شروع نہیں کیا. اچھا ہاں پہلے صدف، پہلے بہت پہلے صدف نے تھی شروع جی کیا تھا. انہوں جی. نے کافی 11 نہیں زیادہ کر لی تھی. بس ٹک کیا ہوا ہے 15 تک، تو 15 کر لی تھی انہوں نے. جی جی تو ہاں میں تو انتظار کر لیتے ہیں. السلام علیکم طارق. وعلیکم السلام صفیہ. واپس آ گئے آپ؟ جی جی میں الحمدللہ. چلیں تو زیادہ نہیں مس ہوا، ہم نے تھوڑا تھوڑا ہی پریزنٹ ہوا ہے ابھی. نہیں میں نے وہ ریکارڈنگ سن لی تھی. اوکے چلیں گڈ ماشاء اللہ. سو یہ کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں فی الحال تو کوئی نہیں ہے. چلیں اور ضروری نہیں ہے کہ لائک اگر ریکارڈنگ کر کے آپ کو کوئی سوال آئے تو آپ
पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में या पर्सनली भेज सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है इंशाल्लाह। श्योर। Okay ji, so we don't have the participant yet. Shaista joined. चले, हमें देखना है, उज़ैर को प्रेजेंट करना है और फातिमा को प्रेजेंट करना है। जुबैर भी नहीं है, फातिमा भी नहीं है, उज़ैर भी नहीं है। शाइस्ता, कैसे लगे थे आपको? सूरह अनकबूत की थी आपने? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सूरह अनकबूत की थी। अच्छा। लेकिन उसमें अभी गर्दानें बनाने वाली हैं, वो मैंने अभी नहीं देखी। जी, वो आराम से आपके पास इसमें पूरा हफ्ता है। हाँ, हफ्ता है। 1-2 तो आसान है, काला की आसान है, जी बाकी मुझे देखनी पड़ेगी। जी, तो आराम से वो देख लीजिएगा, नहीं तो पूछ लीजिएगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जुबैर, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो फातिमा आज नहीं आई अभी? वो ज्वाइन करेंगी, वो अच्छा। तकरीबन 10 मिनट लेट हो जाएगा। उन्होंने अपना जो है फिर प्रेजेंट भी करना है, तो वो कहीं थी सेकंड स्लॉट पे वो प्रेजेंट कर देंगी। चलें, फर्स्ट स्लॉट वाले भी गायब हैं, तो मेरे ख्याल में मैडम दिलशाद कुछ रेडी है आपका? हाँ, तो मैं कर लूँ, लाऊं? मैं तो, आप लोगों ने मेरी नंबर ही नहीं लगाया हुआ था। हाँ, वो अब कोई आया नहीं है, तो आपका सूरा बता दीजिए मुझे। 1 मिनट में पहले अपनी लेते हूँ, मेरी सूरह इनफाल थी ना। जी, अच्छा, हाँ वो तो मुश्किल वाली है। हाँ, चलो। हाँ, सूरह इनफाल मेरे पास पता नहीं है कि नहीं सूरह है। इनफाल की एक ही हुई थी अभी, ओके, दूसरी करनी है होगी। दूसरी, अच्छा एक ही हुई है, तो फिर तो आप एक ही हुई है, चलें, शुरू कर सकते हैं। दूसरी आयत है। दूसरी आयत। हाँ, दूसरी हाँ। आयत तो अच्छी है, लेकिन बस वही फेमिनिन आ गए हैं, तो थोड़ा सा उसको मुझे हेल्प करानी पड़ेगी आपको। नहीं, मुझे समझ आ गई हुई है। आपको समझ आ गई हुई है? ओके, माशाल्लाह। चलें, शुरू हो जाइए फिर आप। पारा नंबर 8 है, आयत इसकी कुल आयत 40 है। नंबर 2 अच्छा। है इन्नमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना लजीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन आपका शायद व अला आवाज कट रही है। हाँ, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ठीक है। इन्नमा बेशक या दर हकीकत अल-मोमिनून लजीना मोमिन वो लोग हैं जो इज़ा ज़ुकिरल्लाहु इज़ा ज़करा की पैसिव है, ये ज़ुकिरा जब अल्लाह का जिक्र किया जाए। आप इज़ा का ना आपने बोला, लेकिन हमें समझ नहीं आया क्या बोला आपने। अच्छा, इज़ा जब ओके, जब ठीक है। ज़ुकिरल्लाहु अल्लाह का जिक्र किया जाए, वाजिलत डर जाए, कपकपा जाए या सनसनी दौड़ जाए, कुलूबुहुम उनके दिलों में, वाइजा और जब तोलियत पढ़ी जाए, अलैहिम उन पर, आयातुहु तो उसकी आयत यानी अल्लाह का कलाम या अल्लाह की आयत पढ़ी जाए, ज़ादतहुम तो ज्यादा कर दे उनका या इंक्रीज कर दे उनका, ईमान व आला और पर रब्बिहिम और वो अपने रब पर, यतवक्कलून
तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। अच्छा, ठीक। दर हकीकत मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र उन पर किया जाए तो उनके दिल डर जाएं, और जब उन पर अल्लाह की आयत पढ़ी जाए तो वो उनका ईमान और ज्यादा कर देती हैं या करें, और वो लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं, या वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। ठीक। तो अब वर्ब बता दीजिए कौन कौन से हैं। हाँ, एक तो यहाँ तो अलमोमिनूना तो नाउन है क्योंकि अल लगा हुआ है, अलिफ लाम लगा हुआ है, और जी, मोमिन की जमा है, प्लूरल है, ठीक मोमिन है। मोमिनून। अल्लज़ी, अच्छा, जोकेरा, जोकेरा जो वर्ब है लेकिन पैसिव है, फॉर्म 1 का, माज ठीक है, है। और माज है और पैसिव है। अच्छा। यानी अ, एक्टिव होता तो जकारा होता, और ये है जोकेरा पैसिव है माजी। तो जाकरा हाँ, का मतलब होता है उसने जिक्र किया, और जोकेरा है जब जिक्र किया जाए, उसके सामने। हाँ, हाँ, उसके सामने। अच्छा, सो ये पैसिव का जरा पूछ लीजिए, सब लोगों को समझ आ गया? हाँ हाँ, नो नो इट्स मॉर्निंग, प्लीज गो। अच्छा, वाजेलत, डर जाए। पहले पहले जोकेरा क्या जवाब हाँ हासिल कर लें। हाँ, सब लोग सब लोग जोकेरा की समझ आ गई। जोकेरा नहीं, से इसको आप एक बार फिर से जो है एक्सप्लेन कर दें। ये ज़कारा से अच्छा, पेश तो आता है, ये ज़ुकीरा क्यों हुआ? नहीं नहीं, ज़ुकरा क्यों नहीं जकारा जो है वो फॉर्म 1 की एक्टिव फॉर्म है, हर वर्ब जो की रूट वर्ड ऐसे पैसिव करें। भी होती है। मैडम दिलशाद, जा, इनको बताएं कि जकारा जो है उसका रूट वर्ड क्या है। हाँ, ज़ाल, जकारा का काफ, रूट वर्ड है रा, जा, काफ, रा। और उसकी जो गर्दान बनेगी वो बनेगी जकरा, जकारा, यस्कुरु। जकरा यस्कुरु। ठीक है। हाँ अब जकरा से जो आप बनाएंगे तो जकरा, जकरू, जकरता, जकरतुम, जकर तू, जकरना। हाँ, ठीक है। यस्करू तो खैर उसमें कहीं जोकेरा नहीं आएगा। ठीक है। अब ये जो है जकारा से अगर इसकी फॉर्म 4 होती, ये फॉर्म 1 है। ठीक है। तो फॉर्म हाँ नहीं, फॉर्म 1 नहीं हो सकती। अब जाल पे जो है पहले लफ्ज पे दमा आ गया। आप देखेंगे ज्यादातर रूट वर्ड जो हैं पहले लफ्ज पे दमा कभी नहीं आया। ठीक। जी जुबैर, अगर आपने सबरा देखा हो, जी कफरा बिल्कुल देखा हो, शकरा देखा हो, क्या आता है? फतहा आता है। जी। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? दम्मा आ रहा है। तो अगर ये आपको मास जैसी फॉर्म लग रही है और उस पे शुरू में दम्मा आ गया है तो चांसेस क्या है कि ये एक्टिव नहीं है बल्कि पैसिव है। सही। ठीक है। जैसे इंग्लिश में आपको हैज बीन, हैड बीन लगाना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल और यहाँ पे आपको जबर से पेश यानी कि फतहा से दमा कर देना पड़ता है। सही। ठीक है। तो और इसके सेकंड की भी आप देखेंगे कि जो हरकत है वो बदल गई है, जकारा से जोकेरा हो गया है। ठीक। तो फिर ये इंडिकेशन है कि पैसिव। अब पैसिव होता क्या है? एक्टिव का मतलब कि जो फाइल है वो खुद काम कर रहा है। राइट। अगर मैं कहूँ जकर तू यानी कि मैं जिक्र करती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर उसको जुकिर तू हो जाए, मुझसे जिक्र करवाया जाता है या मेरी याद दहानी कराई जाती है। ठीक है। तो एक आप खुद कर रहे, एक फाइल जो है खुद काम कर रहा होता है और एक फाइल से काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्या काम करवाया यानी कि उनके सामने जिक्र करते हैं, जिक्र किया जाए। तो इसकी मिसाल आप ले लें कि जैसे अगर कोई कारी, इतने इतने खूबसूरत खूबसूरत तवाज़ुन वाले कारी हैं, राइट, वो उनको क्या पड़ी है कि इतने खूबसूरती से, एक तो अपने लिए, खैर वो अपने लिए भी पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने यूट्यूब बनाई है, डालते हैं। वो क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनकी खुश आवाज को सुनकर कुरान में इन्वॉल्व हो जाएं। राइट। और ना सिर्फ ये कि जब कुरान समझ आने लगता है तो जब आप किसी कारी को भी सुनेंगे तो आपको ये मायने समझ, ज़ोकेरा का मतलब समझ आएगा। राइट।
تو پھر وہ قاری آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے اور آپ کا دل کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا دل ڈر رہا ہے. قرآن کی یہ والی ہے کیفیت. جب قرآن کی آیات کسی پکے مومن، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، کسی پکے مومن کے سامنے دہرائی جاتی ہیں تو وہ ایک دم ان کے دل جو ہیں وہ اس میں بالکل کیا لفظ کہتے ہیں، ان کے دل رقت چھا جاتی ہے، کچھ something like that, right? They are involved in the ذکر, they are involved in the قرآن. ٹھیک، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس نہیں ہے، رائٹ، like all he has left us with the قرآن. اور قرآن as خود has such a beauty کہ اس کی کوئی بھی آیت ہے اگر آپ کبھی واقعی اس میں کھونے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی اکیلے میں، بھلے کسی کے سامنے نہیں، آپ کو واقعی جس دن آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گیا، آپ سمجھ لیں کہ آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا. کسی بھی آیت پہ، ضروری نہیں ہے ہر آیت پہ ہو، لیکن کوئی آیت آپ کے لیے بھی بنی ہوگی جس کو آپ پڑھ کے ایک دم آپ کے جو ہے نا دل ایک دم سے عجیب سا ہو جائے گا، یعنی کہ عجیب سا یعنی کہ اچھا عجیب سا. ہاں صفیہ، یہاں پہ ذکر اللہ کا مطلب قرآن ہے نا اس آیت کے اندر؟ جی، اللہ کا ذکر قرآن کے تھرو، رائٹ. ہاں ٹھیک، آیات کیونکہ آگے آیات کا ذکر ہے تو پوری چیز جو ہے وہ قرآن. ہاں تو الذین اذا، اب سمجھ آیا پیسو؟ زبیر، ہم پیسو کو لے کے کہیں اور نکل گئے. جی اچھا، اس میں جو ہے فرسٹ لیٹر کے علاوہ سیکنڈ لیٹر کی بھی حرکت چینج ہو سکتی ہے. جی ہو گئی ہے، رائٹ. تو ویسے ہر پیسو میں ہو سکتی ہے یا صرف اس کیس میں ہوئی ہے؟ ہر پیسو میں موسٹلی ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ کیس بائی کیس جائیے گا. اس کو رول آپ کسی لائک عربی، جب آپ ابھی بگنر ہیں، ابھی اس کو ایک دم لائک ایک پکا رول نہیں بنائیے گا، کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ 10-12 قسم کی چیزیں کروائی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ابھی ہم سمجھا رہے تھے دوسری والی کلاس کو کہ تصریف بھی ہوتا ہے. تقریباً 400 طریقے سے ورب جو ہے پریزنٹ ہوئے ہیں، رائٹ. تو کہیں زیر تبدیل ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن پھر اگر نہیں ہو رہی تو وہ تصریف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک بک آئی، مجھے کسی نے پریزنٹ کی، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مجھے انیشل آ گیا تو انہوں نے مجھے بک پریزنٹ کی، اور اس میں تقریباً 426 ٹوٹل ورک کی فارم ہے. وہ خیر ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن میں کبھی کبھی جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر میں اس کتاب کو کھول لیتی ہوں. ٹھیک، تو اس لیے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو رول کو پکا نہ کر لیں اپنے ذہن میں، کیونکہ تھوڑا سا جہاں تصریف ہو رہی ہوگی وہاں بدل بھی سکتا ہے. جی ٹھیک، اچھا یہ بتائیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ دیکھ لیجیے اوپر ریکارڈنگ کا سائن آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، تو آپ کو اب پیسو سمجھ آ گیا زبیر اچھی طرح؟ جی الحمدللہ. ٹھیک، تو میڈم نشاد اب آپ واجلت پہ جا سکتی ہیں. ہاں، واجلت ڈر جائیں، یہ فیمینن کے لیے ہے، مطلب ورنہ ہوتا اس کا جو بیسک جو ہے وجیلا ہے. وجیلا وہ کے لیے ہے، وجلو ہم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ سمجھا دیں کہ یہ فیمینن کیوں آیا ہے یہاں پر. ہاں، وجلت جو ہے، وجلت قلوبہم، تو ڈر جائیں ان کے دل، یعنی آیات کے لیے ہے نہیں، قلوب کے لیے، قلوب ان کے دل کے لیے. قلوب جو ہے تقریباً لائک باڈی ہیومن پارٹ تو نہیں ہے نا، باڈی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، باڈی پارٹ کی جمع آئی ہے، تو باڈی پارٹ یعنی کہ یہ نان عاقل ہو گیا، رائٹ. اگر دل کو الگ سے نکال کے رکھ دیں تو اس کے سمجھ کی صلاحیت نہیں ہوگی. دل جو ہے ہمارے جسم کے اندر روح کی جو روح جو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلین نہیں کیا روح کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو قلب ہے یہ ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہوئے اس میں تمام ایموشن آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن از خود یہ جو ہے نان عاقل ہے، ہیومن نہیں ہے.
ठीक। ठीक। तो जो नॉन आकिल हैं उनकी जमा के लिए भी फेमिनिन सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रीजन है इसका यहाँ पर फेमिनिन का इस्तेमाल का। ठीक है, कुलूब आया था इसलिए वजिलत हो गया। ठीक है, ठीक ठीक। तो ये कुलूब के लिए, उनके दिल वजिलत दिल डर जाते हैं। ठीक दिल है, डर जाए। तो दिल की देखें बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम जो है डायरेक्ट दिल पर असर करता है। ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा आप देखेंगे आगे दिमाग के बारे में और चीजें भी आएंगी कुरान में इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद क्या है? वाइजा, और जब तोलियत पढ़ी जाए अलैहिम उन पर आयातुहु की आयात, यानी अल्लाह की के कलाम की आयात। अब ये तोलेयत दोबारा जो है तोलियत फेमिनन आ गया। फिर फेमिनन है। ठीक है, हम्म। तेलाम वाओ इसका हाँ। रूट वर्ड है। तोलेयत हो गया, हाँ। ये तोलेयत हो गया, ये भी फेमिनिन हो गया। अब इस फेमिनिन को एक्सप्लेन करें। ये इसकी वजह जो है आयात है। इसकी वजह आयात है, जो अगेन नॉन आकिल है। ठीक है, वो ह्यूमन नहीं है। ठीक, तो नॉन आकिल के लिए फेमिनिन आयात है, जमा है, वो सिंगुलर ही नाउन इस्तेमाल होता है, ये रूल है। तो उनके दिल डर जाते हैं और जब आयात उनको सामने तिलावत की जाती हैं ज़ादतहुम। अब एक और वर्ब, यानी ज्यादा कर देती हैं, उनका इंक्रीज कर देती हैं। तो ज्यादा जो है वो इंक्रीज करना है। और ज़ादत दोबारा जो है फेमिनिन आ गया, ज़ादत, ये फिर फेमिनिन आ गया। ठीक है, तो किसको ज्यादा कर देती है? ईमान को, ईमान। तो यानी यहाँ सारे तीनों जो हैं वो फेमिनिन वर्ब यूज हुए। हाँ, ये असलूब है कुरान का। ये आप ये देखेंगे कि अगर फेमिनिन थीम चल रहा होता है तो ज्यादातर फेमिनिन ही आ रहा होता है। कभी कभी तो पूरी की पूरी सूरा जो होती है वो फेमिनिन थीम पे चल रही होती है, और कभी कभी एक आयत में अगर एक चीज आई है तो देखें ब्यूटी इसकी ये है कि इस तरह से उसका कॉन्सेप्ट और अरेंजमेंट है कि आपको लगातार वजलत, तोलेयत, ज़ादत, राइट, तीनों। तो इस तरह से डिफरेंट है, ये ईमान की वजह से, हाँ, और तोलियत आयात की वजह से, और वो वजलत कुलूब की वजह से। ठीक, इनका आगे पीछे अगर करके वो उसको मुज़क्कर में भी तब्दील किया जा सकता था। तो यही अरेंजमेंट है जिनकी वजह से कहा गया कुफार को, या आज भी वो चैलेंज बाकी है कि इसके किस्म की एक भी आयत ले आओ, राइट। तो कहीं वो कोशिश करेंगे फेमिनिन डालने की तो वो नहीं डाल सकेंगे, राइट। से दिस इज अल्लाह सुब्हाना ताला। अभी भी लोगों के माइंड जो है ना बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि ये ये क्या है, किस किस्म की टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें एक भी आपको छोटी सी भी आप इसकी कॉपी करके यानी कि अपनी तरफ से ऐसी कोई आयत नहीं बना सकते, कोई चीज बना ले। नो, इट्स इम्पॉसिबल। जो इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अल्लाह हमें इसकी नॉलेज दे दे तो वी विल रियली रियली एंजॉय इट, राइट। तो उसका ईमान ज्यादा हो जाता है। वाला रब्बिहिम, और वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर, वाला रब्बिहिम, और वो अपने रब पर यतवक्कलून, तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। हाँ, कम नहीं करते, ज्यादा करते हैं। वक्काला, हाँ हाँ, वक्काला पांचवी बार, यतवक्कला, हाँ, बहुत भरोसा करते। हाँ, बहुत, राइट। एक, हाँ, वकला हो जाता है तो ये इसमें पांचवी फॉर्म आ गई, राइट। बहुत भरोसा करते हैं, ठीक। तो ये आपकी आयत हो गई नंबर 2, माशाल्लाह अच्छी। किसी को सवाल पूछ लीजिए, किसी को सवाल है? गर्दाने आप लगा देंगी, थोड़ा सा होगा, हम्म, थोड़ा सा सबको यही होगा कि ये फेमिनिन क्या है। हाँ, तो वो आप गर्दाने लगाएंगी तो आप पहले मुजक्कर के कॉलम बनाएंगी और फेमिनिन साइड में लिख देंगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन आ गया है। फातिमा आ गई हैं। अब इसमें जो तवक्कुल है ये जो है फॉर्म 5 है, या तवक्कलून,
जी हाँ, तवक्कला या तवक्कलू, ये जो फॉर्म 5 बनी है इसकी पहचान क्या होती है? ओके, इसकी पहचान मैं यहाँ करा देती हूँ आपको। ओके, सो वकला, वकला, राइट, और इसकी फॉर्म 1 हो गई है। फॉर्म 2 क्या होगी? वक्कला। फॉर्म 3 क्या होगी? वाकला। वाकला। फॉर्म 4 क्या होगी? अवाकला, राइट। अगर हम अवाकला, और फॉर्म 5 क्या होगी? फॉर्म 4 होगी ना अवाकला। अवाकला फॉर्म 4 फॉर्म होगी। 5 में ते लग 2 जाएगा। 3 4, सेकंड फॉर्म 5 में ते लग जाता है, तवक्कला। हाँ, 2 में चेंजेस ये होगी, 2 वाली 5 में बदल जाएगी अगर शुरू में ता लगा दे। हाँ, अच्छा, अब मुझे यकीन है कि मैं समझ रही हूँ शाइस्ता का सवाल। शाइस्ता सोच रही हैं कि ये मुजारे भी तो हो सकता था, नहीं, हाँ, ये तो मुजारे है, तो मुजारे में ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर वो ते वाली चीज आप भूल जाएं, अगर ते से शुरू होता था, ठीक है। ओनली अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तवक्कला यतवक्कलू ततवक्कलू, ठीक है, वो ततवक्कलू हो जाएगा। लेकिन वकला का जो होगा, वक्कला का जो होगा तवक्कलू, लाइक आखिर में दमा आएगा। यहाँ पे क्या है? वक्कला, तवक्कलू, तवक्कलू आएगा, ठीक है। यहाँ पे तवक्कला है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं, मुआज को और मुजारे को। बहरहाल यहाँ तो है ही मुजारे, और मुजारे में ये पहले है, और अगर ते का इजाफा है, देखें, या ता वक्का लूना, ठीक है, यही लफ्ज है ना आपका? या ता वक्का लूना, ठीक है। अब ये वाव और नून को तो गिरा दीजिए आप, ठीक है। क्या बचा? यता वक और या को गिरा दीजिए, ठीक, या को भी गिरा सकते हैं ना, या मुजारे की अलामत। तो क्या बचा? ता वक्का, तवक्का लू, ठीक है, तवक्कल बचा। अब तवक्कल जो है, अब आप देखें, अब ये 4 लफ्ज हैं, 4 लफ्ज का तो लफ्ज हो नहीं सकता, तो फिर आप इजाफा देखें। अब इजाफा क्या होता है? ज्यादातर अलिफ या ता का होता है, ठीक है, या तशदीद का होता है। तो तशदीद तो है, यानी कि 2 काफ आ गए हैं इसमें, लेकिन ये ता भी इजाफा है। तो ता कौन से उसमें आता है? आपके 5वीं फॉर्म में आता है, ठीक है। तो फिर हम इजाफों को देखते हैं, जब हमारे 3 लेटर नहीं बन रहे होते, तो फिर हम इस तरह से लेकर आते हैं, ठीक है। तो मैडम दिलशाद जब इस पे पहुंची हैं, तो वो इसी तरह से पहुंची हैं। पहले उन्होंने या गिराया, फिर उन्होंने वाव नून गिराया, फिर उन्होंने देखा तवक्कला है ये, ठीक है। तो फिर तवक्कला उन्होंने सोचा कि ये ते जो है इजाफा हुआ है, तो ते किस में इजाफा होता है? फॉर्म 5 में होता है, ठीक, सही। क्योंकि मुझे फॉर्म 2 का तो पता लग गया, उसमें तशदीद लगती है, तो हाँ, वो बिल्कुल उसी की कॉपी है, उसमें ते लगा दीजिए आप, बस ते और लगे तो फॉर्म 5, ठीक। फॉर्म 5, यानी कि ये उसका फॉर्म 5 में आराम से बना हाँ। और जुबैर के लिए, जुबैर कभी कभी जो है थोड़े से डिफरेंस के साथ ये वक्कला का पैसिव की तरह बिहेव करता है, ये तवक्कला, ठीक। तो उसके हाँ, तो जैसे 2 का जो पैसिव होता है वो तवक्कला होता है, और वाकला का तवाकला वो फॉर्म 6 भी तकरीबन पैसिव के तौर पे बिहेव करता है जब ट्रांसलेशन में। खैर अभी हम ट्रांसलेशन में नहीं आ रहे, अभी तो सिर्फ हमें मतलब हाँ, मीनिंग में थोड़ा सा वो बिहेव कर रहा होता है पैसिव की तरह, इंशाल्लाह। चलें, तो ये हो गया। अब मैं देख रही थी कि और कौन है जो कि प्रेजेंट कर सकता है। वो सारे बच्चे गायब हो गए जिनको आज प्रेजेंट करना था। अगर इसकी अगली छोटी सी आयत है वो आसान है, मुश्किल नहीं, अगर कहें तो मैं कर दूं। अगर कोई और है तो फातिमा आ चुकी हैं। फातिमा आप रेडी हैं? चलिए ठीक है।
फातिमा की फातिमा? कौन सी सूरत? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। और सूर्य हूद करेंगी आप, ठीक है? चलिए जी जी जी। तो मैं सूर्य हूद लेकर आती हूँ आज। हाँ, वो 2 बच्चे 3 बच्चे जो कल थे वो आज गायब हो गए। शायद उन्होंने कोई मैसेज भेजा हो। स्टार्ट से है। जी फातिमा आज स्टार्ट करेंगी क्या? ठीक। ओके। सॉरी थोड़ा सा ऑलराइट। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन अभी नहीं तो नहीं आ आई। रहा। ओहो, क्या हो रहा है? स्टार्ट ब्रॉडकास्ट एंड हाँ where's my this thing called? Okay, this is there. हूद, सूरह हूद। फातिमा चलें बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत किताबुन नाउन उहकिमत। ये एक किताब पुख्ता की गई है। ये फॉर्म 4 पैसिव है। इसका रूट वर्ड है हा काफ मीम। फॉर्म 4 पैसिव है, ठीक है? जी जी जी। हाँ, और ये आया फेमिनिन तो है कि फेमिनिन है कि फेमिनिन है। ठीक है, क्योंकि आपने ओह के जी ओहकिमत पढ़ा होगा और ये ओहकिमत आ गया, राइट? ता जी, पे अगर आखिरी ते पे अगर सुकून आए तो वो फेमिनिन की निशानी होती है, ठीक? जी जी। तो आया इसकी तो गर्दान आपको लगानी पड़ेगी लोगों के लिए, अच्छा क्योंकि हो सकता है कि ओहकिमत की गर्दान ना हो किसी के पास, ठीक है? और ओहकिमत का आपने मायने क्या बताए? पुख्ता की गई है। पुख्ता की गई हैं, ओके। लेकिन ओहकिमत का आसान सा मतलब ठीक है, पुख्ता सही है। हाँ, परफेक्ट। परफेक्ट को क्या कहेंगे उर्दू में? मेरे ख्याल में पुख्ता। मैडम दिलशाद, नौशीन बताएं आप। साबित की गई हैं। परफेक्शन किया गया उनका। नौशीन, ओहकिमत का जरा मतलब बता दीजिए। बाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये ओहकिमत दोनों लफ्ज सही हैं जो इन्होंने बताए, पुख्ता भी सही है और परफेक्ट मजबूत भी हो सकता। हाँ मजबूत भी हो, मजबूत भी कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में परफेक्ट का लाइक मुझे अभी लगता है कि उर्दू परफेक्ट की कुछ और होगी, लेकिन कोई और आइडिया? परफेक्ट कर दिया गया इनको। वाजे 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 तो फुस्सिल आता है, वाजे का लफ्ज अच्छा। फुस्सिल आता है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हुक्म से हुक्म से मुहक्कम ऐसे मेरा वो हाँ नहीं, मैं सिर्फ वो परफेक्ट का सिंपल उर्दू अंग्रेजी में से उर्दू का मायना डालना चाह रही हूँ। परफेक्ट तो मुकम्मल, साबित, मजबूत या मजबूत। जी हाँ, लाइक हम कहते हैं ना, ये खैर जो भी है, जो पुख्ता ही समझ लें, मजबूत समझ लें, साबित समझ लें, चले। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा, लाइक परफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। Can we say that is बेहतरीन?
हाँ इसको बेहतर कर दिया, बेहतर, हाँ we have perfected, ठीक है, बेहतर बेहतर ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी और उर्दू में standardize कर common जी स्टैंडर्डाइज कर दिया। हाँ वो तो कहते हैं कामिल कर दिया, मतलब कामिल कामिल। कर दिया, अच्छा हाँ हाँ। परफेक्ट कामिल, हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ वही ना, देखें आप लाइक उर्दू अंग्रेजी जो है ना वो पूरे नहीं आती उससे, कामिल से मुकम्मल भी हो सकती है। वो तो फिर वो तो उसके लिए तो लफ्ज है ना, मुकम्मिल करना, हाँ मुकम्मिल करना, सही है, ये मेरा गूगल ट्रांसलेट मुकम्मल दे रहा है। ठीक ठीक, चलें जो भी आपको समझ आता है वो लिखिए, लेकिन ओके मत, यानी कि ये किताब जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, पैसिव में क्यों लिखा है, क्योंकि ये किताब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने की है, राइट, खुद से या किसी और से नहीं हुई, राइट। सो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसको परफेक्ट किया, और ये जाहिर है जब ही ये बहुत ही परफेक्ट किताब है, ठीक। आयातुहु जी, हाँ इसकी ये प्रोनाउन है, इसकी आयत है सुम्मा फिर फुस्सिलत, ये भी जो है पैसिव है, इसका रूट वर्ड है फे स्वात नाम, फेमिनन भी है, फेमिनिन है जी, बयान की गई है, खोल कर बातें बयान की गई, वाज़े खोल के बयान, तफसील से, तफसील का लफ्ज आपने सोचेंगे ना तो आप फुस्सिलत, और वैसे हुकमत तो हिकमत वाली, हिकमत से भी निकला है, राइट, लेकिन हिकमत का मायने यहाँ पे नहीं, विजडम वाली नहीं आ रहा, परफेक्शन के मायने आ रहे हैं, लेकिन फुस्सिलत तो वो जैसे तफसील आप कहते हैं ना, तफसील, ये और ऐसी तफसील जिसको बिल्कुल क्लियर करके बयान कर दिया गया है, ठीक है। हाँ मिल्लदुन तरफ से हकीम खबीर, हकीम जो है ये भी नाउन है और खबीर भी नाउन है, हकीम बहुत हिकमत, वाइज, ऑल वाइज, राइट। सो देखिए एहकमत परफेक्शन किससे ही आ सकती है, जो कि बहुत ही वाइज हो तो वो ही परफेक्शन ला सकता है, ठीक। और Khabir, he is all aware of our past and a present and a future, so everything is just like कुरान में आपको मौजूद मिलेगी। 1400 साल पहले कुरान आया था, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त कुछ भी नहीं था, बट उस जमाने में भी ये पूरा उतरता था, और आज देखें तो यानी कि कुरान के थ्रू या अहादीस के थ्रू 360 joints कुरान लाइक हदीस में आए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल उस जमाने में किसी ने इतनी एनाटॉमी तो की नहीं होगी या पता नहीं की होगी, राइट। So like Prophet sallallahu alaihi wasallam, in one of the hadith there are 360 joints, but the bones are less, right? So it's kind of like everything in the Quran and the hadith is like mukammal and complete, and nothing to be just passed by. और आज भी आप देखें तो एवरीथिंग, सूरज में क्या है, सूरज का जो इन्फ्यूजन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होता है, खैर अब तो मैं केमिस्ट्री भूल गई, तो वो भी इस काइंड ऑफ लाइक कुरान की वर्डिंग में आपको अगर गौर से पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो 1400 साल पहले तो साइंस भी नहीं थी, साइंस तो अभी 200-300 साल की इजाद है, राइट। थ्योरीज जो हैं अभी 200-300 साल की इजाद है। तो वेयर दिस परफेक्शन इज कमिंग फ्रॉम, is coming from Hakim, and is coming from the Khabir, who is the aware, who has the awareness of today's, the past and the present and the everything, right? ठीक, इसमें कोई सवाल है पूछिए आप फातिमा। लदुन को जरा डिटेल बताएंगे। लदुन आपको मिलेगा अल्लाह के, मिल्लदुन का लाइक अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह के पास से, राइट। मतलब ये हमेशा तशदीद के साथ होगा लाम पे? नहीं, लाम का तशदीद जो होता है वो तजवीद का रूल हो गया, मिल, राइट। वैसे लदुन जो है वो एक अलग जो कि टाइम वर्ब है, अल्लाह के पास से, राइट, ये टाइम वर्ब है।
टाइम वर्ब का मतलब लाइक आई मीन इसका मोर भी होगा एक्सप्लेनेशन, लेकिन बस ये सोच लें आप कि ये अल्लाह के लिए है और अल्लाह के पास है, द वन फ्रॉम अल्लाह, लदुन हकीम। अच्छा, मतलब किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता ये? नहीं, ये नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह ठीक के लिए लदुन, या वो इल्म जो अल्लाह की तरफ से हासिल है, अच्छा, कुरान जैसे हमारे। या ठीक। So, and this is like a time, like not the space, because right, वो जो हम हदीस डिस्कस कर रहे थे कि नमाज में ऊपर आसमान की तरफ देखना गुनाह कबीरा है, राइट? नमाज में हम खड़े खड़े आसमान की तरफ नहीं देख सकते, राइट? तो उसकी वजह भी क्या है कि लाइक अल्लाह सुब्हानहू ताला इज नॉट लिमिटेड टू आसमान। जो कोई ऊपर देख रहा होता है अचानक से समझता है, ये समझ के देख रहा होता है कि अल्लाह ऊपर है, दैट वुड बी टोटली रॉन्ग, ये समझना, राइट? अल्लाह इज एवरीवेयर, अल्लाह इज मुहीत, राइट? जी फातिमा, हाउ डू यू फील? जी सफिया, कैसा लगा प्रेजेंट करके? जी, अच्छा। मुश्किल थी? ये थोड़ी सी मुश्किल थी आपके लिए? ओके मत अनफुसलत। जी जी, आज तो सारी फेमिनिन आ रहे। सारे आज वुमेन डे आज, राइट? सफिया, ये जो अभी आपने बताया कि आसमान की तरफ देखना, जी ये हदीस है। यहाँ ठीक है, और जो अल्लाह बेशक हर है, लेकिन हम जो ये कहते हैं अर्श अजीम, तो बेसिकली हम अर्श हमेशा ऊपर ही की तरफ कहते हैं, अर्श एंड फर्श नीचे हो गया, अर्श ऊपर, इसलिए थोड़ा सा लोग अर्श जो है वो पूरा स्फेयर है। अच्छा, अर्श जो है वो मुहीत है सब पे, ओके, नॉट टॉप इज ऑल। Yeah, and basically this is hadith because उसका जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तरह से कि मैं आपको उसका वो बता रही हूँ, लाइक मफहूम बता रही हूँ, लाइक द वे ही सेड दैट कि ये लोग क्यों ऊपर की तरफ देखते हैं, इनकी आंखें छीन ली जाएंगी, लाइक एंड ऑन सम ऑफ द हदीस ही वाज जस्ट लाइक, जब हजूर अकरम की हदीस बयान की जाती हैं तो उसमें बाकायदा ये भी बताया जाता है कि कब वो स्माइलिंग मूड में थे, कब वो एंग्री मूड में थे, कब वो सीरियस मूड में थे, एंड दिस इज प्रीटी सीरियस के ऊपर नहीं देखना चाहिए। एंड देन वन ऑफ द स्कॉलर सेड ये गुनाह कबीरा है नमाज के दरमियान ऊपर देखना। वैसे दुआ के दरमियान तो देखते हैं, बट दुआ इज नॉट द नमाज का हिस्सा। I didn't know, ये मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चली है हदीस, and I didn't know, और शायद मैं ऊपर देखा करती थी, and then that was wrong. I'm so afraid. लेकिन जब आप ला इल्म में कर लें तो it's okay, but you can refer to that हदीस। अब तो आप गूगल करके वो बुखारी और मुस्लिम फौरन आ जाते हैं सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ओके, नोटेड। ओके, आगे भी एक पढ़ी जा सकती है, वो पढ़ ले। फातिमा आप आगे पढ़ना चाहेंगी या मैडम निशात? मैडम निशात आप ही कर लें, उनके सर में ख्याल में आवाज का प्रॉब्लम है। वन इज गुड इनफ, इट्स अ गुड स्टार्ट फातिमा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड गजाला ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक। सो मैडम निशात आप अगली करना चाहें तो कर लें। चलिए, सूरह अनफाल आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता। एक मिनट मुझे लाने दीजिए। एक मिनट मुझे कॉपी बदलने दे। सॉरी यार, ये तो आसान सी है, यू आर राइट। हाँ, वही मैंने कहा छोटी है और इसमें ज्यादा मुश्किल वर्ड भी नहीं। आयत नंबर 3। आयत नंबर 3 है, अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता
वमिम्मा आपने नहीं निकाली अभी, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन पे नहीं आ रही अभी। स्क्रीन पे नहीं आ रही, ये नहीं। मेरा स्क्रीन क्यों काम नहीं करता? जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक, अब आ रहा है जी। हाँ अब स्टार्ट। अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना वो लोग जो युकीमूना कायम करते हैं ठीक। अस्सलाता नमाज, वो जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम मिम्मा हमारा ही दिया हुआ, रज़क़नाहुम उनको जो हमने रिस्क दिया या हमारा दिया हुआ रिस्क, युनफिकूना खर्च करते हैं। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और हमारा ही दिया हुआ रिस्क खर्च करते हैं। ठीक है, युकीमूना और युनफिकूना का तो आप गर्दान लगा देंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन आप मिम्मा को जरा एक्सप्लेन करें। व मिम्मा वाह तो और हो गया, वाह और हो गया, मिम्मा ये दो लफ्जों से बनकर बना है, मिन एंड मा, ठीक है। मिन तो और आसानी मा। के लिए इसका नून ड्रॉप करके मिम्मा कर दिया गया है, ठीक है। मिन का मतलब से, मा माने जो, रज़क़ना जो हमने रिस्क दिया। तो ये फिर मिन माह से है, तो फिर माँ पे तजदीद क्यों आ गई? मीम तो एक है। क्योंकि जब आप दो मीम अच्छा, नून अच्छा, हटाएंगे, नहीं तो लिखने में वह मिम्मा, मीम अलग भी आई है, फिर माँ पे तजदीद आई है, इस तरह मतलब हाँ, 3 लेकिन मीम जब हो भी गए। मिन और मा साथ आते हैं वो मिम्मा ही लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि लिखा तो मिन जाता है। मा कहना जो मिन वो उसकी तजवीद के रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक। नहीं तो मतलब जैसे माँ पे अगर तजदीद हो सपोज, तो इसका मतलब है 2 दफा माँ, ठीक है, एक पे जज्म एक पे जबर, जी, ठीक है। तो वो और हाँ, उससे पहले भी अगर मिन लगा दें, मिन मीम से नून, अब कह रहे ना सिर्फ नून को जो है ओमिट कर दिया समझो, उसको तो रिप्लेस मिम, कर दिया मीम से, एक और हाँ मीम से, ठीक है, ठीक, तो ठीक सही है, ठीक हो गया, सही। ठीक। वह मिम्मा, हाँ, तो ताकि वो लाइक फ्लो के लिए, लाइक बहुत सारी हाँ। चीजें जो जो वमिन मा लाइक अब अच्छा यहाँ भी हाँ। रज़क जो है वो फेमिनन है। नहीं, रज़क़ना है ये। अच्छा अब रज़क़ना, भूल हाँ जाए ठीक अब है, ठीक है। फेमिनिन को, अब हर चीज हाँ नहीं फेमिनिन नहीं नहीं नहीं, है। हाँ हाँ, रज़क़ना रज़क़ना, वो जो रज़कू, जी, हाँ, रज़क़ता रज़क़तुम रज़क़ना, ऐसे तो करके जो यहाँ पे रज़क़ना रज़कना का क्या आएगा। मतलब है? रज़कना जी, क्या मतलब है यहाँ पे रज़कना का? हमने रिस्क दिया, अच्छा, हमने उनको रिस्क दिया, उनको किनको? अल्लज़ीना को, हाँ, राइट राइट। अल्लाह जब भी सुभान व तआला कहते हैं रज़क़ना ही कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और रिस्क दे ही नहीं सकता, राइट। फिर हम ये कहते हैं हमने कमाया, नो, हमें कहना चाहिए अल्लाह ने ये दिया, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं कमाया, अगर अल्लाह नहीं चाहता अल्लाह की तो हम वो मर्जी ना ना हो तो कमाते कुछ हैं, भी नहीं हो सकता। हाँ। तो अल्लाह सेड लाइक रज़क़ना, और रिस्क जो है वो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, हाँ, उसमें सेहत आपकी बोलनी है। सेहत, उसमें आपकी औलाद, उसमें आपके पैसा, उसमें आपका घर, उसमें आपके मवेशी, एवरीथिंग इज अ रिस्क। और ये जो हवा हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, वो भी हमारा रिस्क है, और इल्म जो है वो भी रिस्क है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें ये टाइम दिया और हमें हमारे जहनों में ये बात डाली कि हम सीखें, तो ये इल्म हमारा रिस्क है। तो हम उन लोगों से जो कि इस वक्त रिस्क हासिल नहीं कर रहे इल्म का, उनसे ज्यादा हमें अल्लाह सुब्हाना तआला रिस्क दे रहा है, ठीक है, इल्म का रिस्क दे रहा है, राइट। एंड दैट्स द बेस्ट रिस्क इन द वर्ल्ड, इल्म का और ये रिस्क। जो अच्छा ये आयत नंबर 3 में 2 जो है वर्ब हैं, एक तो है जी, यूना
کیونکہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، یو یہ پہ دمہ کہتے ہیں دمہ نا، ہے. ہاں ہاں، تو اس لیے ورب کی فارم 4 ہوگی. اقامہ یقیمو سے ہے تو ٹھیک ہے فارم 4 ہے مضارع. ٹھیک ہے. ہاں، اقامہ یقیمو یقیمونا، تو یہ دوسرا آ جائے گا مضارع فارم 4 کا. ٹھیک ہے. اچھا، سیم رزق ود ينفقون. ينفقونا جو ہے افاقہ نہیں، انفقا. انفقا، انفقا ہاں ينفقون. انفقا سے ہوگا، ٹھیک انفقا، ہاں انفقا سے ينفقو. ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ بھی فارم 4 ہے. 4 مضارع ہے. ہاں، ان کو دیا گیا جو ان کو ہاں. اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ينفقون. ٹھیک ہے. تو اور وہ یہ یتوکلون، اور یہ اور ان سب رزق جو دیا جاتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اگر علم ہے تو علم کو بھی ہمیں آگے بڑھانا ہے. دیٹس اور وہ ہمارا خرچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے کیسے خرچ کریں گے؟ روزی، ہمارے نزدیک روزی وہ ہے جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ پیسہ، وہ ہوگا. ہاں، لیکن وہ ہر ڈیفینیٹلی چیز ہے جو آپ کو ہاں، ہر وزڈم یا چیز جو ہے. بھی آپ کی صحت تندرستی جو بھی دی ہوئی ہے وہ سارا رزق ہے. صفیہ جو رزق کی ہم بات نیرو ڈیفینیشن لیتے ہیں صرف کھانا پینا، اب آپ جو بتا رہی ہیں اس کے لحاظ سے تو آل انکلوسیو ہو گیا، ایوری تھنگ آل انکلوسیو ہو گیا. یس، آئی تھنک یہ بڑا اچھا آپ نے کانسیپٹ دیا ہے. ہم اب اندازہ مطلب یہ رزق اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں ہی کو لیتے ہیں، بٹ لیکن یہ صحیح بات ہے جو آپ نے بتائی. بالکل. الحمدللہ. یا قرآن واقعی از اے گریٹ ٹیچر، رائٹ؟ کیونکہ علم القرآن، جی ہم نے قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں. قرآن کے لیے اگر ہم تھوڑا بہت بھی سیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے زیادہ اچھا سیکھ سکیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چوز کر لیا، رائٹ؟ وی شوڈ بی اے لٹل پراؤڈ آف، اور شکر اس کا اور زیادہ شکر ادا کریں، رائٹ؟ الحمدللہ. میں شکر زیادہ کریں، پراؤڈ تو نہیں ہوں. I mean, yeah, proud is arrogance. Yeah, شکر کریں. Grateful, yeah, that's the word. باجی پراؤڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. 2 لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جن کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس کو دن رات جو ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں پہ بانٹ رہے ہیں. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور ایک رزق مطلب مال دیا ہے اور وہ اس کو دن رات خرچ کر رہا ہے. تو آپ اسے پراؤڈ بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. علم کی بڑی حیثیت ہے، اور مال کی بھی اگر وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے تو. جیسے صفیہ علم بانٹ رہی ہیں. نو، آئی ایم نو ویئر نیئر. دعا کریں کہ اللہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں. وہ میں بھی آپ سے سیکھ رہی ہوں. یہ ہمارا کمبائنڈ سیشن ہے، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا صفیہ، یہ جو ہم فارم 4 پہ پہنچے ہیں یقیمونا کا اور ینفقونا کا، یہ لکھو ذرا اس کو، یا میڈم دلشاد لکھیں گی؟ میں وہ بولتی جائیں گی، میں لکھتی جاؤں گی. اوکے چلے ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے شائستہ جو یقیمنا ہے اس کا آپ کو روٹ پتہ ہونا چاہیے. قاف واو میم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قاف واو میم جو آپ نے جیسے قاف واو لام کو تو اچھی طرح آتا ہے نا، اس کو آپ کالا کر دیتے تھے. تو یہ اگر قاف واو میم ہوگا تو اس کو قامہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. واو جو ہے حذف کے رول کے مطابق الف میں چینج ہو جاتا ہے تو قامہ ہو گیا. قامہ ہو گیا. اب قامہ کا جو وہ ہوتا ہے وہ یقوم ہوتا ہے، یا زبر آ کے قو یقوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے؟ یقیم دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کہاں سے آئے گا. اگر ہم اسے فارم 4 لیتے ہیں تو وہ ہے اقامہ. ٹھیک ہے. الف لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اقامہ کا اپنے جو ہم نے جب فارمز کی تھی وہ اقامہ کا یقیمو ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ پھر تو آپ آگے بنا لیں گی جب آپ کو یہ پتہ چل گیا. یہ فرسٹ فارم ہے اور یہ 4 فارم ہے. جب آپ کو یقیمو پتہ چل گیا تو اس کے بعد یقیمو، یقیمونا، تقیمو، تقیمونا، یہ تو آسان ہو جائے گا. ٹھیک.
ठीक, इसी तरह नफका दूसरा लफ्ज जो है वो नून फे काफ नफका, ठीक है, यही है ना मैडम? हाँ, नफका है और इसका नफका यनफिकु। यनफिकु, हाँ, तो नफका यनफिकु, ये फॉर्म 1 यनफकु है या यनफिकु है? यनफिकु। यनफिकु। फिर वो अनफका हो जाएगा, अनफका फॉर्म 4 है। अनफका, और युनफिकु। ये युनफिकु हो जाएगा, युनफिकु, ठीक। तो फॉर्म 4 से बन गया। थोड़ा सा ये मुझे देखने दीजिए, बल्कि हम साथ ही मिलके देख लेते हैं। नफका का मैं थोड़ा सा, अकामा तो ठीक है, अकामा से युकीमु हो गया, अकामा युकीमु पैसिव हो गया। अच्छा, ये काफ वाओ ये वीक लेटर है ना, लेकिन इसमें कोई वीक लेटर नहीं है, तो ये सही है, ठीक है, ठीक है। कामा यकूमु, अकामा युकीमु, ठीक है। और ये नफका युनफिकु, अनफका, नफका यनफिकु, अनफका युनफिकु, ठीक है। जब आपको युनफिकु आ गया तो फिर आप उससे कर सकती हैं। तो कोशिश किया करें कि फॉर्म की, जब फॉर्म किया करें तो फॉर्म 1 है तो फॉर्म 1 का माज़न मुजारे, फॉर्म 2 का माज़न मुजारे, इस तरह से दोनों साथ लिख लिया करें तो आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आज यहाँ ही तक रखें इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी लोग नहीं पहुंचे आज, और अगली बार हम स्केड्यूल लगा देंगे। तारिक, आप अगले बार सूरह लुकमान को आगे कंटिन्यू करेंगे? अच्छा, 8th होगी मेरी आयत, ठीक है। 8th, ठीक है। और जुबैर आप? जी इंशाल्लाह, सूरह नूह। हाँ, सूरह नूह इंशाल्लाह, ठीक। तो माशाल्लाह फातिमा, गुड ट्राई। तो आप, हाँ माशाल्लाह आप हैं। अच्छा, अरूसा को बहरहाल टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। एक्चुअली फातिमा और जुबैर बहन भाई हैं, एंड अरूसा उनकी दूसरी आयरलैंड से सिस्टर जो कोशिश की थी उन्होंने शुरू में ज्वाइन करने की, राइट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्या है? सूरह लुकमान की आयत नंबर 8 होगी जी, और जुबैर की सूरह नूह की वो तारिक, ठीक है। और जुबैर सूरह नूह करेंगे आयत नंबर 4 तक मैंने कर लिया है, मैं कोशिश करूंगा 7 तक कर लूं। ठीक है, तैयार रखिएगा 7 तक। नौशीन आप? जी इंशाल्लाह। नौशीन आप कर सकती हैं एक आध प्रेजेंट नेक्स्ट वीक? नौशीन नहीं है क्या? नौशीन है लेकिन म्यूट पे है शायद, वो म्यूट पे। नौशीन सूरह रात कर रही हैं जी, वो भी आगे कर सकती हैं, वो आराम से कर सकती हैं, उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी बाजी, सॉरी मेरा वो काम नहीं कर रहा था मोबाइल। मैं इंशाल्लाह सूरह रात 4 तक हो गई थी, मैं आगे 5 से ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह। ओके, तो हम तीन हमारे पास हैं, और फिर आगे वो जुबैर आ जाएंगे, तो जुबैर कह रही हूँ उज़ैर आ जाएंगे तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, वो सूरह यूसुफ कर रहे हैं। ठीक ठीक, तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं अगले वीक, ठीक है। तो मैं सूरह यूसुफ की तो किसी और को दी हुई है ना? सूरह यूसुफ जो है वो जीशान को हमने दी थी, लेकिन जीशान तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनका मसला चल रहा है, बिजी हैं। उज़ैर ही करेंगे, वो थोड़ा इंग्लिश में करते हैं। ताहिरा आप भी मेरे ख्याल में ड्यू हैं, आप भी प्रेजेंट कर सकती हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ठीक है। और उज़ैर जो है सूरह यूसुफ इस तरह से करेंगे कि वो नए लोगों के लिए फर्स्ट से करेंगे। एक्चुअली वो इन द मिडल हैं और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब की है प्रेजेंटेशन में, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपना आगे का कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो यंग बच्चे लाइक आई मीन ही इज वेरी टैलेंट, लाइक बहुत अच्छा उन्होंने खूबसूरत प्रेजेंट किया है, लेकिन वो शुरू से आप लोगों के लिए दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और mine is going to start it with the 4th. ताहिरा 4th Ayat करेंगे, number 4th, and that's Surah Anbiya. सूरह अंबिया, ठीक। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।
اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. Okay. وعلیکم السلام.